वेलकम एवरीबॉडी। आज का दिन एक नया संकल्प का दिन है। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, या तो नए कॉन्सेप्ट समझने की या पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की। यूपीएससी की जर्नी जो है ना, ये एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। और यहाँ पे हर दिन का करंट अफेयर्स आपको एक और आगे एक कदम लेके चला जाएगा आपके गोल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सफर एक नए जज्बे के साथ। We have got you 5 important headlines that made space in the newspaper today. एक वरेंडा आईएएस के जो डेली करंट अफेयर्स के सेशंस होते हैं, where we don't just cover the news but we decode it for your UPSC and prelims and mains both exams. So today's index includes power packed mix of science, security, sustainability और बहुत सारे strategy, उन सारे topics that are not just in headlines but are deeply connected to the UPSC syllabus across GS paper 1, 2 and 3 और environment के कुछ हिस्से में भी. So let's quickly glance through the issues what we are going to understand today in depth. First is about the Axiom 4 mission, a collaboration of ISRO and NASA that brings space diplomacy and student engagement under one roof. If we're coming to the second point, it's about the second news is about Kurtma Mela, a beautiful intersection of marine biology and cultural tradition, the mass nesting of olive ridley turtles, very beautiful. अगर थर्ड इसकी बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इट इज इंडियाज न्यू नॉर्मल इन काउंटर टेररिज्म। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है वेयर वी कैन सी डॉक्ट्रिनल शिफ्ट दैट redefines how India perceives and responds to threats post Uri and Balakot. If we talk about the fourth one, that is climate resilient development, it is a Niti Aayog backed call to future proof our development agenda in the era of climate uncertainty. If we talk about the fifth point, it is regarding the agriculture and poverty reduction. It is exploring how inclusive agricultural growth can become India's best weapon against agricultural rural poverty. Each of these topics is a potential UPSC question, not just for prelims, not just factual, but deeper means analysis. So keep your pens ready, notes open. Our pure focus should be on the basics, on the understanding of the issue. So let's start on how we can understand these 5 topics in a better way. So let's begin today's session with a headline that connects space diplomacy, scientific collaboration and education. The Axiom 4 mission. That is, it is not just a mission, it is seen as it represents India's increasing stake in the global space exploration ecosystem. And if we talk about, if I have to give an overview of the mission of what is it all about, the Axiom 4 mission is a privately organized mission to the International Space Station, and India is making history through this mission. For the first time, the group captain Shubhanshu Shukla, an Indian Air Force officer, is being sent to the space station in 2025 in collaboration with ISRO and NASA. ये एक और कदम है इंडिया के लिए, जहां पे towards becoming an important player in human space flight missions as well. आप देखोगे ये जो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज हैं, उसमें इसरो एंड नासा विल नॉट ओनली सेंड an astronaut but will also engage with students and researchers. This in itself is a new thing which India is going to be a part of. 2 student outreach events रहेंगे और 5 joint scientific investigations रहेंगे इसमें. This enhances science diplomacy, a concept that connects a nation through shared scientific goals. For example, just like the Chandrayaan and Antarim's cooperation that has built trust between nations. So these outreach events build trust and inspiration among youth. So
ह्यूमन रिसर्च की और ये वाले कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसर्च का, जो कि हम इसमें अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेस फ्लाइट जो है, it affects the human body in several ways. So it has loss of bone density, muscle atrophy, radiation exposure हो जाता है। तो through Axiom 4, India will participate in space physiology experiments to understand how microgravity impacts human health. So this is the basic overview of how this mission is going to actually be. तो ये जो रिसर्च है गगनयान मिशन के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है. If I have to give you a little history of this, so let's not forget कि India has already made progress in space tech with launching its lot of initiatives like Chandrayaan जो मून मिशन है, मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, गगनयान है जो अपकमिंग हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भी लॉन्च करने की ट्राई कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. बट ये जो एक्सियोम 4 है वो इंडिया की फर्स्ट प्रेजेंस है ऑन द ISS. that in itself it makes very strategically important for us. It's a step ahead. यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स में, क्योंकि बहुत फैक्चुअल डेटा डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन एस्ट्रोनॉट का नाम या वो कहाँ से कौन से इसमें से बिलोंग करता है, विच मिशन इट इज, व्हाट इज एक्सियम स्पेस एक्सेट्रा करके क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली. मेंस के लिए भी मिशन के साइंस डिप्लोमेसी के बारे में या पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन इन स्पेस ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको इसके लिंकेजेस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे. आई हैव अटैच्ड दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द नोट्स बिलो. यू कैन गो थ्रू दैट वंस. फैक्चुअल डेटा आपको बहुत रिवाइज करने की जरूरत है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो आगे चल के we'll see what it holds for us. Let's try to understand कि ये जो एक्सियम मिशन है ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, he is an Indian Air Force officer. He is all set to become the second Indian after Rakesh Sharma to visit space. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जून 8 को 2025 में एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम मिशन उनको वहां पे सेंड करेंगे. दिस इज द स्टोरी. यहाँ ये एक बहुत ही माइलस्टोन इवेंट है, क्योंकि इंडिया का स्पेस डिप्लोमेसी और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो है अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टच करेगा. ये एक बहुत ही कोलैबोरेटिव आउटरीच है, नॉट जस्ट अ मिशन, बट इट वुड टेक अस अ स्टेप अहेड इन space diplomacy as well. It is not just about sending a man to space, right? It's involving a society in science. As a part of this mission, ISRO and NASA will conduct 2 outreach events focused on students and the STEM education. It will direct, it will undertake 5 joint scientific investigations, especially in human physiology in space. तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम्स है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन रहेगा, जहाँ पे जो एम कर रहे हैं वो वांट टू एंटर इनटू एरोस्पेस एंड स्पेस साइंस फील्ड्स के लिए भी. सो ह्यूमन रिसर्च में भी फोकस होगा, तो हाउ ह्यूमन इज रिस्पॉन्डिंग इन माइक्रोग्रेविटी वो भी हमें समझने को मिलेगा. बोन डेंसिटी लॉस या मसल एट्रोफी या इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स रिसर्च के रहेंगे. एंड जो हमारे गगनयान का फ्यूचर मैन मिशन रहेगा, इट वुड डेफिनेटली प्रोवाइड अ ग्राउंड वर्क टू दिस मिशन एज वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इफ वी सी, आप यहाँ पे जो कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी क्लैरिटी होने के लिए. तो आई हैव चोजन फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स हियर. एक्सियम मिशन तो मैंने आपको आई हैव explained you. ये आज के आर्टिकल में से these couple of few important concepts I have taken. First is Axiom mission, जहाँ पे I have told you कि एक प्राइवेट क्रूड स्पेस मिशन रहेगा जो कि jointly इंडिया और नासा परफॉर्म करेगी. It is sending the
So Axiom missions are a series of private space mission organized by US based company called Axiom Space. ये कोशिश करेगा to commercialize low Earth orbit और उनके फ्यूचर गोल्स रहेंगे establishing the world's first private space station. So these are the few basic information about Axiom. It becomes important because space is not just a government domain. Private players like SpaceX, Blue Origin ये जो है और अभी Axiom Space ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. तो Axiom-4 जो है is not a government program but a private mission that allows participation of astronauts from multiple countries like India as well. So ये हो गया Axiom. अभी देखेंगे what is ISS जो कि International Space Station है. It is a collaborative international project that includes बहुत सारे कंट्री के स्पेस एजेंसीज जो है उनके एजेंसी को मिला के ये स्टेशन बना है. इट इज मोर लाइक वर्किंग लैब इन द स्पेस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे. इट हैज नासा जो यूएसए का है, रॉसकॉस्मोस है जो रशिया का है, ईएसए है जो यूरोप है और जापान का एजेंसी है, सीएसए है जो कनाडा का है. सो ये जो ISS है वो ऑर्बिट करता है अराउंड 400 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड में एंड इट सर्व्स एज अ माइक्रोग्रेविटी लैब फॉर एडवांस रिसर्चेस. जैसे अगर कोई लाइफ साइंस हो गया, मटेरियल साइंस हो गए, फ्लूइड डायनामिक्स हो गए, ये सारी चीजों में इट रिसर्चेस. तो ISS पर जो एक्सपेरिमेंट करने से रिसर्चर्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर के इफेक्ट्स के बिना ना डाटा मिल जाता है जो बहुत ही एक्यूरेट और फ्यूचरिस्टिक होता है. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ये समझना है कि दिस इज नॉट ओन्ड बाय एनी वन कंट्री, ये कोलैबोरेटिव वेंचर है. कीप इट इन माइंड. इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, आप देखेंगे ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम जो है HRP. ये ह्यूमन स्टडीज स्पेस में इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन है जैसे मार्स में या मून में हो रहे हैं, दैट वुड रिक्वायर एस्ट्रोनॉट्स टू लिव इन स्पेस फॉर मंथ्स एंड इवन ईयर्स. और ये जो HRP स्टडीज है ये फोकस करती है हाउ स्पेस फ्लाइट इफेक्ट्स बोन्स, मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स. सो इट इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इम्यूनिटी एज वेल. जो इसके काउंटर मेजर्स लाइक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स, डाइट क्या होनी चाहिए, क्या मेडिकेशंस पॉसिबल है, it helps in that. Example आप देखोगे अगर NASA twin study showed how one twin in space aged slower at the cellular level than the twin on the Earth. That is very fascinating, right? तो यही रिसर्च जो है मिशन को सेफ बनाता है और फ्यूचर स्पेस कोलोनाइजेशन के लिए भी एक फाउंडेशन रेडी कर रहा है. अगर आप देखोगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट्स जो है प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड रहेंगे. तो ये इसरो का कोलैबोरेशन स्पेस का किसके साथ है या इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा क्या पार्ट है, ये सारा आपको याद रखने की जरूरत है. So once your basics are clear, you are very versed with basics, you can handle the UPSC twist. जब भी वो कोई भी question आएगा, you'll be able to answer it quickly. Moving to the next slide. अब देखेंगे इसका एक historical context ये है कि हमने इसके पहले कौन से missions ऐसे try किए थे या किसी और country ने इसको कैसे यूज किया था. बट हमें ये भी जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट जो है स्पेस में इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इन 1984 और 2025 तक अभी तक के व्हाट डेवलपमेंट हैज हैपेंड. इफ वी सी 1984 में जहां पे ये सारा शुरुआत हुआ था, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली स्पेस ट्रैवलर टिल नाउ हैज बीन राकेश शर्मा who went aboard the Soviet Soyuz T-11 mission. तो इन जब उनसे पूछा गया था कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है, उन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा. That iconic moment set the emotional foundation of India's space dreams. So, if coming to the Gaganyaan project that happened, India's own step into manned missions था. ये बहुत ही
यू नो इसरो के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था जो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये फर्स्ट इंडिया का इंडिजिनियस मैन मिशन प्लान किया गया था, तो इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। This initiative na accelerated India's engagement with human space flight. या कोई एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हो गई, या अगर स्पेस मेडिसिन में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, अबाउट ऑल दैट। एक्सियम 4 जो है वो बहुत ही अच्छे से गगनयान को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा ऑन द IASs, इसको हम एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं टू डेवलप दैट। If we talk about NASA and ISRO collaboration, ये एक डिप्लोमेटिक बैकबोन माना जाएगा, क्योंकि इंडिया और यूएस जो है they have collaborated in various space projects। अभी जो है निसार करके जो नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, that is set to launch in 24-25 ये साल में हो जाएगा। तो ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए होगा निसार। ये भी एक जॉइंट ऑपरेशन रहेगा यूएसए और इंडिया के बीच में। दिस शोज दैट स्पेस कोलैबोरेशन इजंट only about astronauts, it's about earth environment, it is a earth and focused mission। coming to the next slide, ये आप देखोगे हमने एक्सियम 4 के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, उनके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, उसकी क्लैरिटी ले ली है। बट अभी देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसका सिग्निफिकेंस हमारे इंडिया के लिए, हमारे साइंस में, हमारी सोसाइटी पे क्या रहेगा। अगर आप देखोगे इंडिया इन स्पेस, इट हैज बिकम अ सिंबॉलिक एंड अ स्ट्रेटेजिक लीप। अब 40 साल हो गए, इंडिया इज सेंडिंग मैन टू स्पेस अगेन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अब देखोगे ये मार्क करेगा इंडिया's re-entry into a human space flight, positioning us alongside nations like USA, रशिया एंड चाइना। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक इवेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल डिक्लेरेशन है कि भारत रेडी है स्पेस के रेस के नए दौर के लिए। दिस क्रिएट्स मोमेंटम फॉर गगनयान एज वेल, क्योंकि ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस मैन मिशन होने वाला है। इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। आप देखोगे अगर आउटरीच प्रोग्राम्स हमारे ये कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो साइंस और सोसाइटी के लिए मायने रखते हैं। थ्रू स्टूडेंट आउटरीच इवेंट्स, दिस मिशन वुड डेफिनेटली एम टू प्रमोट स्टेम, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, वो एजुकेशन को ये प्रमोट करेगा। इट वुड डेफिनेटली फॉस्टर साइंटिफिक टेम्परामेंट अमॉन्ग यूथ, इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेस साइंटिस्ट, जो तो दिस विल अलाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के है, हमने बहुत बार पढ़ाई की है उसकी। इट वुड डेफिनेटली अलाइन विद द साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स जो लॉन्च हुआ है। मेंस में आप ना इन एग्जाम्पल्स को डायरेक्टली एथिक्स के पेपर में या फिर GS 2 के पेपर में, गवर्नेंस और एजुकेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट, अगर आप स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे तो बिल्डिंग बायोसाइंस कैपेसिटी, इंडियन साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड 7 कटिंग एज experiments on microgravity effects on cellular biology, materials behavior in space। तो ये सब रिसर्च है इसरो के स्पेस बायोसाइंसेस कैपेसिटी को ग्लोबल लेवल पर शो करता है। It becomes important. It also strengthens India's presence in space medicine and life science, जो कि बहुत ही crucial है for long-term space mission. If we talk about इसके futuristic vision को, क्या करेगा एक्सियम 4 हमारे लिए, इंडिया के लिए, व्हाट इट ब्रिंग्स। तो ये मिशन सिर्फ एक करंट इवेंट चल रहा है या ऐसा, इससे कहीं ज्यादा इट इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस, फॉर इंडिया, टुवर्ड्स द leadership, like and it is coming after long decades. If we try to understand, जो इंडियन स्पेस स्टेशन है फ्रॉम पैसेंजर्स टू प्लेटफॉर्म ओनर को शिफ्ट हो रहा है, और ये एक्सियम 4 विल एनहांस इसरो's experience with space habitation, human physiology research and docking and re-entry dynamics। इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, एक ट्रेनिंग की तरह होगा ये प्रोजेक्ट। All this will help pave the way for India's own space station proposed after Gaganyaan, likely to be around 2035। अब
मेंस में इसको लिख सकते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पेस बेस्ड साइंस एंड डिप्लोमेसी. How beautifully we can take this news into enhancing our answer writing, you see. If we talk about public-private partnership, the new space economy, this mission is a product of collaboration with Axiom Space. He is a private player. It signals that India का जो है is alignment with global trends. जैसे स्पेस एक्स हो गया जो यूएसए से है, ब्लू ओरिजिन या रॉकेट लैब्स, ये सारे जो हमारी पीपीपी मॉडल है उनको एनहांस करेंगे. इट रिड्यूसेस कॉस्ट, इट एक्सेलरेट इनोवेशन, इट एक्सपैंड्स एक्सेस टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. सो अगर आप देखोगे, आप ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स बोले आपको जीएस पेपर 3 में एग्जांपल दे सकते हो. इनोवेशन में इनोवेशन इकोसिस्टम या हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हमारा जो है साइंस एज अ डिप्लोमेसी प्रूव हो रहा है यहाँ पे. दिस मिशन has deepened its ties between ISRO and NASA. तो हमारा इंडिया का और यूएसए का रिलेशन जो है और रिसर्चर जो है वो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे. That becomes a opportunity. So this reflects India's increasing influence in science diplomacy, and it is an important dimension of a soft power. ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात अगर करें तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाएंगे. दैट वुड डेफिनेटली एनहांस आवर नॉलेज. हमारे जो रिसर्चर्स रहेंगे या पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनके लिए they will be gaining access to the global best practices. And ISRO builds astronaut training modules. So India creates a talent pool for international collaborations as well. So this prepares India not just to launch missions, but हम लोग ये सब करके we can lead space policy discourse globally. आज का सेकेंड हेडलाइन है जो है कदमा मेला के बारे में. सो ये है एक ऋषिकुल्या बीच की जो ओडिशा में है, जहाँ पे अभी हुआ है एक बहुत ही इकोलॉजिकल मिरेकल जैसे, जो कि कोरमा मेला के नाम से. तो द टर्म कोरमा मेला इज यूज्ड फॉर स्पेक्टेकुलर सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग इवेंट्स ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल्स नोन एज अरीबरा. तो ये और इस साल का इवेंट था ना, वो एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट देखा गया. ये जो मास नेस्टिंग है ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है. और ऋषिकुल्या बीच जो है जो उड़ीसा में है, ये इवेंट में 6 लाख से भी ज्यादा ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं in 1 week for synchronized nesting. So this phenomenon is called arribada, a Spanish word meaning arrival by sea. यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये अरीबड़ा जो है ये टर्म क्या है या किससे कनेक्टेड है, तो यू हैव टू रिकॉल इट प्रॉपरली. आप देखोगे इसका कंजर्वेशन सक्सेस जो है, इट इज अ मॉडल फॉर इंडिया. तो ये जो मास नेस्टिंग है एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी भी है हमारे लिए. ओडिशा के जो कोस्ट है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो ये जो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस होते हैं, टेट्स, आर यूज्ड इन फिशरीज. ऑपरेशन ओलिविया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड प्रिवेंट्स इलीगल फिशिंग. ये सारे हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा फेनोमेनन जो हुआ वो हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाता है. इस इवेंट का होना दिखाता है कि जब प्रोटेक्शन और पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर काम करती है तभी ही नेचर अपने ट्रू कलर्स हमें दिखा पाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा इवेंट था. अब टूरिज्म कंसर्न्स ये रहेंगे कि अभी इसको कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, बिकॉज विद इकोलॉजिकल वंडर गेनिंग फेम टूरिज्म बहुत सर्च हो गया है. बट अगर आप देखोगे तो ये अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ तो इट वुड डिसरप्ट नेस्टिंग बिहेवियर, हैचलिंग्स को डैमेज हो कर सकता है, या अगर बीच की इकोलॉजी है उस पर भी वो इफेक्ट करेगा. आप इसको जीएस पेपर 4 में कंजर्वेशन एथिक्स के रूप में ये बोल सकते हैं. ये जो टूरिज्म कंसर्न है उसको साइड कर सकते हैं.
अब देखोगे अगर साइंटिफिक इंटरेस्ट जो इससे मिलेगा हमें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू लर्न मेनी थिंग्स. इम्प्रिंटिंग क्या होता है, हाउ हैचलिंग्स रिमेंबर देयर बर्थ प्लेस, इंसाइट्स टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ हम देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटिफुली. अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मरीन नेविगेशन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से दैट वुड एनहांस दैट. इस टॉपिक को आप एनवायरनमेंट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल से भी लिंक कर सकते हो. It's all about a very holistic understanding of each and every topic what I'm trying to tell you here. Nesting हो गया या habitat policy operation ओलिविया वो हो गया, wildlife protection act हो गई. This are all very important factual data which you have to remember. और कौन से बीच में हुआ था, location also becomes important here. So we'll move to the next slide now. ये जो कर्म मेला यानी मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स है, इस वक्त न्यूज में है क्योंकि मार्च 2025 में ऋषिकुल्या बीच में उड़ीसा में इंडिया ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेस्टिंग इवेंट को नोटिस किया. ये नेचुरल इवेंट दुनिया के कुछ ही बीचेस पर होता है और उड़ीसा का जो कोस्टलाइन है इसमें ग्लोबल लेवल पे एक यूनिक माना जाता है. तो ये एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट था. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. Concepts clarity is the key to score high in the prelims. So and अगर आपको कोई impactful answers भी लिखने हैं मेंस में तो it becomes its importance. तो हम जानते हैं कि इसके पीछे जो भी ये आर्टिकल में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई टर्म्स है जो हमें समझ में नहीं आए, some fundamental facts about the olive ridley turtle. It is one of the most iconic marine species found alongside India's coast. आप देखोगे अगर इसका साइंटिफिक आइडेंटिटी है, ये है कि साइंटिफिक नेम इसका है लेपिडोस्लेस ओलिवासिया. IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस उसका है वल्नरेबल. प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है. तो इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. आप देखोगे अरीबदा फिनोमिनन जो है ये है, इसका मीनिंग है ग्रेट अराइवल. ये टर्म जो है इट इज फॉर द सिंक्रोनाइज मास नेस्टिंग इवेंट जो कि होता है उसके चलते है ये, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल टर्टल्स अराइव एट द शोर एट वंस टू ले द एग्स. ये बहुत ही यूनिक बिहेवियर होता है ओलिव रिडली टर्टल्स के amongst them. So think about it कि कैसे lakhs of turtles know exactly when to arrive. That is the beauty of biological instinct, I can say. If you see what is philopatry, nature's GPS, वो होता है कि these turtles exhibit philopatry, which means they return to the exact beach where they were born. How beautiful and how fascinating this sounds. They are guided by geomagnetic cues like nature's built-in navigation system की जैसे वो एक्ट करता है. That's why human activity on nesting beaches can confuse और या उनको मिसगाइड हो जाएगा फॉर हैचलिंग और एक स्पीशीज साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. If we talk about the primary nesting sites in India, वो important हो जाएंगे. यहाँ पे 3 major nesting sites है. वो है गहिरमथा केंद्रपारा में उड़ीसा में ही, जहाँ पे वो ये एक लार्जेस्ट रुकरी है इन द वर्ल्ड. अभी जो न्यूज में है वो है ऋषिकुल्या रिवर माउथ गंजम में उड़ीसा में, वेयर दिस ईयर मास टेस्टिंग अभी आपको देखने मिला. एक और एक है देवी रिवर माउथ है, अनदर इम्पोर्टेंट बट थोड़ा स्मॉलर है, स्टिल इम्पोर्टेंट साइट. प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो वी हैव टू ट्राई एंड मेमोराइज दीज थिंग्स. अगर आप किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेस स्टोरी को समझने के लिए ना उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना भी जरूरी होता है. तो in case of olive ridley यहाँ पे इंडिया में it is not just about protection, it's a decade long conservation that has turned around in such a beautiful story. in 1960 में जो हुआ था वो एक बहुत ही अलार्म था हमारे लिए of declining the species. According to the IUCN, the olive ridley population declined by 30 to 50% since 1960. वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हम लोग ओवर फिशिंग के करते थे, ट्रॉलर्स नेट्स के द्वारा हैम्पर हुआ था, या कोस्टल पॉल्यूशन भी एक जिम्मेदार रीजन है.
इफ यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, वो भी एक फैक्टर रहेगा। अनरेगुलेटेड टूरिज्म या कोई लाइट पोल्यूशन, ये बहुत नेस्टिंग को बहुत अनसूटेबल बना देगा वो बीचेस को। सो दिस मेड द ओलिव रिडली स्पीसीज लिस्टेड एज अ वल्नरेबल। तो आया 1990s में एक बहुत ही वेकअप कॉल, क्योंकि अर्ली 1990s में इंडिया ने स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग नेस्टिंग साइट्स, इम्प्लीमेंटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स बहुत ही स्ट्रिक्टली, और ये जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है इन पर भी ध्यान दिया। तो ये जो एरा है, इट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया। अभी आप देखोगे, अगर रिसेंट ईयर्स में क्राइसिस टू कमबैक का हमारा स्टोरी चल रहा है। ओडिशा हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट mass nesting ground in the world, occasionally surpassing even Costa Rica and Mexico in turtle numbers. So this shows how long-term ecological patience या sustained conservation policies रहते हैं can deliver global recognition. If we talk about the conservation programs, अगर grassroots power की बात करें, तो ये जो एक operation है खचप्पा, launched in 1998, that was focused on turtle protection in Odisha. बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लिए गए थे, दैट इंक्लूड्स मास बीच क्लीनअप्स हो गए, या लोकल टर्टल प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, कोलैबोरेशन किए गए थे कोस्ट गार्ड और ऑपरेशन ओलिविया, उसके चलते दे वर कोलैबोरेटेड. So these programs empowered local communities to become eco warriors. अब इसको एनवायरमेंटल एथिक्स या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के मॉडल के इसमें भी आप इसको GS4 में लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल को. सो अब तक हमने देखा है कि ओलिव रिडली टर्टल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा हमने उसको कंजर्व किया था, क्या एफर्ट्स लिए थे, लेकिन विल ट्राई टू कनेक्ट इट विद टुडेज करंट एनवायरमेंटल, साइंटिफिक एंड एथिकल रेलेवेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओलिव रिडली. आप देखोगे रिकॉर्ड नेस्टिंग जो होता है, इट्स अ कंजर्वेशन विन फॉर अस. This year has recorded it shows a very positive trend in marine biodiversity. It has given us a validation of a community-led protection measures. It has given effectiveness of laws and enforcement like World Wildlife Protection Act 1972, या अगर coastal regulation zone की भी बात करें, उनके rules की बात करें, तो it has given a proper effect. UPSC mains में आप इसको लिख सकते हैं, evidence of outcome based environmental governance. Very important theme. You can recite this example. If अगर हम बात करें ecological importance की, it is more than just the turtle, right? Turtles जो है maintain करते हैं healthy seagrass beds को, जो कि बहुत ही vital होता है for fisheries. अगर आप देखोगे coral reef stability जो होती है, वो maintain होती है through grazing. We talk about the coastal food chains, as eggs and hatchling provides बहुत ही nutrient to the predators. UPSC जो GSC में लिख लेना एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक स्पीशीज का प्रोटेक्शन से पूरा हम लोग इकोसिस्टम को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द फिलोपैट्री एंड थ्रेट्स जो रहेंगे, बिकॉज ये बहुत ही डेलिकेट नेविगेशन रहेगा. These turtles shows a philopatry जहाँ पे वो रिटर्न करते हैं to the same beach where they were born after decades, guided by the Earth's magnetic field. और अभी थ्रेट्स जो रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे, अगर हम लोग उसको आर्टिफिशियल लाइट्स जो है बीचेस के पास होते हैं, या टूरिस्ट टचिंग, अगर वो नेस्ट को टच करेंगे, या कोई बहुत शोर शराबा होगा, तो दैट वुड बी अफेक्टिंग, इट वुड डिसरप्ट द मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग, दैट वुड कॉज लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज. तो अगर आप देखोगे इंटरजेनरेशनल इक्विटी का जो GS पेपर में है, उसके केस स्टडी में आप उसको यूज कर सकते हो. इफ वी सी अबाउट टूरिज्म वर्सेस कंजर्वेशन, ये एक बहुत ही बड़ा एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है. एंड टूरिज्म जहाँ की अवेयरनेस लाता है, लोकल इनकम लाता है, उसके साथ साथ ही उसके बहुत ज्यादा क्राउडिंग भी लेता है, बहुत नॉइज, लाइट एंड ट्रैश एंड एग पोचिंग. सो हमारा चैलेंज टूरिज्म को स्टॉप करना नहीं है, it is about creating eco-sensitive zones with community-led tourism models.
अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ जो यूपीएससी के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेंसिटिव है, पर कॉन्सेप्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया का नया काउंटर टेररिज्म अप्रोच है, उसका हमने एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट देखा कि कैसे इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम रिस्ट्रेंट टू रिजॉल्व। Let's break this down into 3 defining pillars, जहाँ पे first is proactive response. If you see, proactive response में जो crossing the line of control था, literally for decades India's response to terrorism was very reactive. But events like Uri attack 2016 में हुआ था या पुलवामा 2019 में हुआ था has completely changed it. The new doctrine involves hitting back across the border if necessary. जो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में हुआ था वो हमने क्रॉस बॉर्डर किया था। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक इन 2019 की थी वो भी एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी। आप अगर इंटरनल सिक्योरिटी आंसर में या ये जो डॉक्ट्रिन है ऑफ प्रीएम्प्टिव न्यूट्रलाइजेशन, आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। Coming to the second one, strategic deterrence, that is messaging through action. सर्जिकल स्ट्राइक ना होते हैं जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेस नहीं माने जाते हैं, दे आर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टूल्स। दे सेंड मैसेज that India will not tolerate proxy warfare. The retaliation will be swift and specific. So it redefines deterrence is a nuclearized South Asian context without crossing into a full-scale war. आप देखोगे हमारा ये जो शिफ्ट है, how it is living by an example now. ये जो है, ये जो कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, एक एग्जाम्पल के रूप में आप आपके आंसर्स में लिख सकते हो। अगर आप देखोगे थर्ड पॉइंट जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, जो हम ब्लेम गेम, नेमिंग, शेमिंग हुआ था। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है has been geared towards isolating terror sponsors at global forums, pushing for designating individuals under UN 1267 sanctions, building pressure through FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मसूद अजहर डिक्लेयर्ड ग्लोबल टेररिस्ट इन 2019 आफ्टर इंडिया पुश्ड इट। दिस एंगल विल डेफिनेटली कम्बाइन GS2 का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, GS3 का जो सिक्योरिटी है, एंड मेक्स योर आंसर मल्टी डायमेंशनल। अब यू कैन यूज दिस पॉइंट। ये जो आप पॉलिसी है हमारी, जो डॉक्ट्रिन ये है जो शिफ्ट हुई है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ना, हमें जरूरी होता है कि हम जाने उस मोमेंट को क्या पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिक रीइंफोर्समेंट मिला है। ये जो ये न्यू नॉर्मल है, डॉक्ट्रिन है, इट इज मेकिंग हेडलाइंस अगेन इन 2025, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको फिर से रीअफर्म किया था उनके स्पीच में कि हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, इंडिया विल परस्यू टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। This was not just a rhetorical statement, it was a strategic reaffirmation of India's punitive cross-border counter-terror policy. तो ये बहुत ही important हो जाता है। आप अपने ये जो डॉक्ट्रिन इवोल्यूशन है हमारी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बिना हम कोई आंसर्स बहुत इम्पैक्टफुल नहीं लिख सकते, तो हम इसके लेट्स अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन बिहाइंड इंडियाज इवॉल्विंग काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। अभी जो हम उसको न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं, तो ये असल में है क्या? तो व्हाट इज न्यू नॉर्मल? इट इज अ शिफ्ट इन इंडिया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दैट emerged पोस्ट उरी एंड पुलवामा अटैक्स। आपने देखा हम लोग पैसे कैसे रिटेलिएट करते थे और अभी कैसे कर रहे हैं रिसेंट इयर्स में। इट मीन्स इंडिया विल एक्ट प्रोएक्टिवली, नॉट जस्ट रिएक्टिवली। It would pursue terrorists even across borders. It would combine military actions with diplomatic isolation. तो ये डॉक्ट्रिन केवल एक ऑपरेशनल शिफ्ट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टांस रहेगा। अगर आप देखोगे ये जो डॉक्ट्रिन शिफ्ट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये सारे पिलर्स रहेंगे ये जो न्यू नॉर्मल के चलते।
नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर स्टेट स्पॉन्सर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसका मतलब है अगर कोई कंट्री होस्ट कर रहा है टेरर ग्रुप्स को, तो दैट कंट्री आल्सो विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। यूज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड एयर स्ट्राइक्स एज स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग टूल्स, नॉट जस्ट रिटालिएशन बट कम्युनिकेशन ऑफ रेड लाइन्स। अब देखोगे क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो किए हमने, दे आर नाउ ट्रीटेड एज एक्ट्स ऑफ वॉर, नॉट मियर लॉ एंड ऑर्डर इशू। दिस जस्टिफाइज कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक्शन एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है कितना नेसेसरी है। इसको आप ना मेंस में ग्रेजुएटेड एस्केलेशन स्ट्रेटेजी के कॉन्सेप्ट के रूप में लिख सकते हो, ग्रेजुएटेड एस्केलेशन स्ट्रेटेजी। Coming to the third point, if we talk about the comparisons, जो ऑपरेशन शक्ति हुआ था और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे वर्सेस जो बालाकोट में हुआ था, ये जो डिफरेंस है आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि हमारी जो स्ट्राइक्स थी 2016 की वो ग्राउंड बेस्ड थी, हमारी फर्स्ट पब्लिक क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन था। बालाकोट में था एरियल स्ट्राइक, जहां पे हम लोग डीप पाकिस्तान में गए थे डिस्पाइट ऑफ न्यूक्लियर रिस्क। Balakot was a watershed moment जहां पे India's willingness to call the nuclear bluff while maintaining escalation control was seen. ये जो डॉक्ट्रिन है ना, कोई भी डॉक्ट्रिन वैक्यूम में नहीं आता, वहां पे बहुत पॉलिसीज इवॉल्व होती है इन रिस्पॉन्स टू द हिस्टोरिकल प्रेशर, और जो सिक्योरिटी फेल्यूर के हम सीख लेते हैं उनके उनके वहां से जनरेट होता है। तो वहां लेट्स नाउ एक्सप्लोर ये टाइमलाइन दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द इंडियाज न्यू नॉर्मल इन काउंटर टेररिज्म। आप पहले देखोगे ये जो कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में, यहाँ पे रिस्ट्रेंट डिस्पाइट प्रोवोकेशन था। इवन आफ्टर पाकिस्तानी इंट्रूजन इन कारगिल, इंडिया चोज नॉट टू क्रॉस द LOC of line of control, fought very strictly within our territory, prioritized international image and diplomacy को उन्होंने बहुत ही importance दिया था। So this was the era of strategic restraint. India avoided escalation. आप देखोगे मुंबई अटैक्स में भी 2008 में हमने ग्लोबल प्रेशर ओवर रिस्पॉन्स को चूज किया, जहां पे 26/11 एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। 10 टेररिस्ट held entire metro city hostage. बहुत ही 200 से ज्यादा लोगों को they were killed. That evidence pointed to Pakistan based groups. Still India did not retaliate militarily, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत सारे डिमेंशंस को ओपन करेगा। ग्लोबल प्रेशर चलो या कोई अगर डिप्लोमेटिक रिस्क हो गया तो इसके चलते बहुत लिमिटेशंस थे। तो हमारे जो ये पैसिव डिप्लोमेसी को हम लोग देख पा रहे थे उस टाइम पे। अब जब उरी अटैक के बारे में बात करेंगे 2016 में, ये हमारा पहला क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक थी। आफ्टर 18 soldiers were martyred in terror attack at Uri, India launched surgical strike across the LOC. यहाँ पे destroyed their terror launch pads in Pakistan, that Pakistan occupied Kashmir, and for the first time India used publicly declared military action as a deterrent. This marked the first step towards assertiveness. जो अगर आप पुलवामा अटैक की बात करेंगे, द बालाकोट स्ट्राइक, जैश ए मोहम्मद suicide bomber killed 40 CRPF jawans. India retaliated with Balakot airstrikes deep inside Pakistan and beyond POK, crossing the LOC without crossing the full-scale war. This was a watershed moment for us. India shed its image of restraint and project credible, measured aggression. अगर हम बात करेंगे ये जो डॉक्ट्रिन के प्रेजेंट रेलेवेंस की, क्योंकि किसी भी पॉलिसी का असली मतलब तभी होता है जब वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन या उसका मैसेजिंग है, दोनों में बहुत क्लैरिटी दिखाए। तो लेट्स अंडरस्टैंड जो न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है, इट इज प्लेइंग आउट इन रियल टाइम इन इंडियाज काउंटर टेररिज्म पोस्चर कैसे नजर आ रहा है। इसका जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है वो इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड करता है। इन अप्रैल 2025 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस किया था कि हम लोग ना टारगेटिंग नॉट जस्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैसेज पास किया था
एक बहुत ही मल्टीलिंगुअल मल्टी लेयर्ड कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नैरेटिव बिल्डिंग डिप्लोमेसी। आप देखोगे तो शोइंग इंडिया एज अ फर्म बट रिस्पॉन्सिबल एक्टर, गेनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट पोस्ट एक्शन एज सीन इन बालाकोट हमने देखा था। तो ये ऐसे इस तरह से हैंडल हो रहा है अभी। आप इसको ना जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखोगे परसेप्शन मैनेजमेंट थ्रू लीडरशिप मैसेजिंग, ये जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है नोटिस करने के लिए हमारे लिए। आप देखोगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिस्पॉन्स जो है फ्रॉम इवेंट टू डॉक्टरिंग, इंडियाज एक्शन टुडेज आर नॉट डॉक्ट्रिन ड्रिवन, नॉट केस बाय केस, उसका रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस मिनिस्ट्रीज जो है, बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए या डिफेंस हो गई। इट इज एम्बेडेड इन इंडियाज मिलिट्री प्लानिंग स्ट्रक्चर। दिस मार्क्स अ शिफ्ट ऑफ फ्रॉम रिएक्टिव डेमोक्रेसी टू स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट। आप देखोगे अगर टेक एनेबल्ड डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो ड्रोन्स हो गए या कोई इंटेलिजेंस हो गया, वी आर नाउ इन्वेस्टिंग इन प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस सर्वेलेंसेस, और ये जो आईएसआर बोलते हैं हम लोग इसको, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकनाइसेंस, एआई ड्रिवन थ्रेट प्रोफाइलिंग जो है post 2019 na ISR technologies played a very huge role in surgical operations that had minimizing civilian casualties while maximizing the accuracy। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली टेक एनेबल्ड डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो कैजुअलिटीज को भी कवर करता है बहुत अच्छी की तरीके से। अगर आप देखोगे नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो है, आप इसके लिए ये एग्जांपल बोल सकते हैं। इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैलेंस्ड अप्रोच, जहाँ पे फोर्स विद रिस्ट्रेंट हम देख सकेंगे, जहाँ पे इंडिया जो है आफ्टर पुलवामा डीप इनटू एनिमी टेरिटरी हम लोग एंटर कर चुके थे, बट वो भी था जो एक केयरफुली कैलिब्रेटेड मूव था टू अवॉइड सिविलियन हार्म। इट वाज डिजाइन्ड टू स्टे बिलो न्यूक्लियर एस्केलेशन थ्रेशोल्ड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही टेक्स्ट बुक है एथिकल यूज ऑफ फोर्स की, या ये जो थीम है इट इज रेलेवेंट टू जीएस पेपर 4 एंड आपके ऐसे के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल की तौर पे। अगर आप इस डॉक्टरिंग के आगे के इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, और you know how can we understand what it implies in future, what comes next? It would definitely help in strengthening counter terror diplomacy. India will you know continue to lead efforts to isolate state sponsors of terrorism. यूनाइटेड नेशन में हो गया या G20 समिट में हो गया, इट इज डेफिनेटली ट्राई टू पुट इट्स पॉइंट। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स जो होते हैं उनमें भी ये ट्राई करेगा। स्ट्रेटेजिक गोल जो है, it would definitely create a global consensus on punitive deterrences. It can push FATF compliances and UN sanctions. India will work to, you know, keep countries like Pakistan on FATF grey list. It would definitely push for that, and it would definitely ensure global listing of terror group leaders जो UN 1267 के लिस्ट में है। ये स्टेप हैं काउंटर टेरर फिनांस और नार्को टेररिज्म दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगर आप देखोगे ये एनकरेज करेगा अदर डेमोक्रेसीज को, यू नो, टू इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, टू अडॉप्ट फर्म डॉक्ट्रिन्स that would act as a push for a global responsibility to retaliate. It would be very important. Moral dilemma जो है collateral damage और deterrence के बीच में है, वो भी इसको कैसे handle करना है, we get to realize here how to neutralize threats without harming the innocents, है ना। ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये डॉक्ट्रिनल शिफ्ट की वजह से हमें। Coming to the fourth point today,
अगर हम विकास को ना हम कल के लिए सुरक्षित नहीं बना रहे हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो एक बहुत ही इल्यूशन है. And this is exactly what climate resilient development demands for us. Progress that can survive climate shocks. So let's explore why and how of this concept. आप देखोगे ये जो increasing climate risk है, it is an alarming trend. India today faces several heat waves in central and northern parts of India. तो ये एक एक अलार्म जैसे है हमारे लिए. अभी और इवेंट जो है, फ्लडिंग हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया कोस्टल एरियाज में, तो या हो गया इरेग्युलर मॉनसून दैट इज अफेक्टिंग आवर एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी की बात हो गई. तो ये जो यूनाइटेड नेशन का आईपीसीसी है एंड इंडियाज आईएमडी हैव बोथ फ्लैग्ड इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन. आपको GS3 जो मेंस में अगर लिखना होगा कि डेवलपमेंट और क्लाइमेट के बीच में बैलेंस क्यों जरूरी है, यू कैन साइट दिस. आप देखोगे एडेप्टेशन कम्युनिकेशन. अगर आप देखोगे ना, नीति आयोग का जो रोल है इसमें, अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, कंट्रीज मस्ट सबमिट एडेप्टेशन कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स आउटलाइनिंग हाउ दे प्लान टू अडेप्ट द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. तो नीति आयोग ने रिसेंटली जो रिपोर्ट सबमिट किया था, इंडियाज लेटेस्ट कम्युनिकेशन, जहां पे उन्होंने कवर किया था अर्बन फ्लडिंग रेजिलियंस कैसे है, दे आर गोइंग टू टैकल, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे करेंगे हम, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क ऑडिट्स के बारे में रिपोर्ट बनाई थी. दिस शोज इंडिया इज नॉट जस्ट कमिटिंग टू emission cuts, but it is also planning to survive the damage that is already unfolding. If we talk about climate physical risk assessment, measuring the vulnerability, India is now building district level risk maps, heat and flood vulnerability indices, or tools to guide the resilient infrastructure project. So ये क्या करेगा, पॉलिसी मेकर्स जो रहेंगे उनको हेल्प करेगा टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट टू प्रोएक्टिव प्लानिंग. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अर्बन प्लानिंग इन सिटीज लाइक सूरत या चेन्नई ना, नाउ इंक्लूड्स स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स, जो कि ये फ्लड को हैंडल करने की चलते बनाए गए हैं. If we talk about climate proof development, it is mainstreaming the climate lens. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर जो हाईवेज है, रेलवेज है नए, and it must align or it should be designed with future climate projections in mind. तो focus on green infrastructure, disaster resistant materials and nature based solution. ये अप्रोच जो है, ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 13, क्लाइमेट SDG 13 जो है, क्लाइमेट एक्शंस के साथ भी जुड़ता है. आप इसको एनवायरनमेंट में GS2 के गवर्नेंस के पार्ट में भी लिख सकते हैं. इट बिकम्स लाइक आप देखोगे कि आप लिख सकते हैं कि हाउ ट्रू डेवलपमेंट टुडे इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ फास्ट वी बिल्ड, बट बाय हाउ लॉन्ग व्हाट वी बिल्ड कैन एंड्योर अ क्लाइमेट अनसर्टेन फ्यूचर. ये जो एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स तभी यूपीएससी के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब उनका एक कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूशनल बैकिंग हो, जैसे कि अब हो रहा है कि नीति आयोग के रिसेंट स्टेप के साथ. तो ये जो न्यूज है कि इंडिया का एक बहुत ही लार्जर क्लाइमेट प्लानिंग हो रहा है. क्लाइमेट रिस्क इन इंडिया, राइजिंग रेड फ्लैग्स, इंडिया इज इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू हीट वेव्स जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में है. तो ये हम लोग इसको रिस्क असेसमेंट की प्लानिंग में कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सारा आर्टिकल इस पे बना हुआ है. एंड दिस इज व्हाई वी नीड टू स्टडी फर्दर मोर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. हम लोग बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अगर आप वो समझ जाएंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये किस बेसिस पे है. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे क्लाइमेट फिजिकल रिस्क हो गई, अडेप्टेशन हो गया, मिटिगेशन हो गया, ये सारे आपको अगर समझ में आ गए तो इट इज इजी फॉर यू टू रीड द न्यूज.
अगर कोई फ्यूचर में भी ऐसा आर्टिकल आता है तो यू कैन रीड इट, अंडरस्टैंड इट बेटर. So what is climate physical risk? तो CPR refers to direct risk from climate hazard, जैसे floods हो गए, droughts हो गए, cyclones, heat waves, etc. ये जो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल्स आते हैं, सी लेवल राइज होता है, ये सारे उसमें आ जाते हैं. अक्यूट शॉक जो है, इट इज लाइक अ क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड. क्रोनिक स्ट्रेसर्स होते हैं लाइक अर्बन हीट आइलैंड्स एंड ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, समथिंग लाइक दैट. सीपीआर असेसमेंट जो है पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है टू प्रायोरिटाइज कि रिस्क जोन कौन से हैं, कौन से एरिया के लिए फंड्स एलोकेट कर सकते हैं ज्यादा, दैट वे मोर एफिशिएंटली दैट वे. तो सीपीआर जो है एक साइंटिफिक इनपुट बन जाता है क्लाइमेट बजटिंग के लिए भी. If we talk about what is adaptation versus mitigation, it is a conceptual difference. आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखोगे कि mitigation मतलब reducing emission to slow climate change, switching to solar energy या afforestation हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए. Adaptation आप देखोगे तो उसका मायने है कि हम adjusting system to survive climate impacts by building heat resilient buildings या flood proof routes बनाए. तो इस तरीके से मिटिगेशन इज इक्वल टू प्रिवेंशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन. तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ सकते हैं कि मेंस में भी पूछा जा सकता है कि बैलेंस और इंटीग्रेशन का आप कैसे कर सकेंगे यहाँ पे. तो दैट वे यू कैन राइट दिस, यू कैन अंडरस्टैंड. आर्टिकल 7 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ये है, ये एक लीगल मैंडेट है. तो ये ऑब्लिगेट करता है ऑल सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग इंडिया टू बिल्ड एडेप्टिव कैपेसिटी, टू एनहांस रेजिलियंस, टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी. सो दिस वुड रिक्वायर सबमिशन ऑफ एडेप्टेशन कम्युनिकेशन, जो कि हमारे नीति आयोग ने 2023 का लेटेस्ट सबमिट किया हुआ है. हमारी जो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है उन पे भी हम काम कर रहे हैं. दिस शोज इंडिया कैसे उस पे काम कर रहा है. डेफिनेटली इट बिकम्स इम्पोर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. हम लोग जब ना किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं, वी हैव बीन थ्रू मेनी आर्टिकल्स सो फार एंड आई डेफिनेटली गिव यू कि इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड क्या है उसका. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. और हमें यहाँ पे ये प्लानिंग इवॉल्व कैसे हुआ ये हम इसमें देखेंगे. अगर आप देखोगे इंडियाज वल्नरेबिलिटी के बारे में, ये एक बहुत ही एक स्टेटिस्टिक है जहां पे वर्ल्ड बैंक ने ओवर 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ने बोला कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन द डिस्ट्रिक्ट दैट आर exposed to one or more climate risk. Flash floods in उत्तराखंड एंड हिमाचल, साइक्लोन्स हो गए उड़ीसा में, बंगाल में, हीट वेव्स हो गए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एक्सेट्रा. सो दिस मेक्स इंडिया जस्ट नॉट अ डेवलपिंग कंट्री. तो हम लोग क्लाइमेट फ्रंटलाइन नेशन भी बन जाते हैं इसके चलते. अगर आप इसको आप देखोगे एनवायरमेंट सेक्शन में, इसका आप डेफिनेटली मेंशन करना है इसको. Coming to the second point, National Action Plan on Climate Change जो है 2008 में इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसमें 8 टोटल मिशन इंक्लूड किए थे. सोलर मिशन है, ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आई हैव गिवन इट इन द नोट्स टू यू, यू कैन गो थ्रू दैट. पर ये जो थे वो बहुत ही फोकस थे मिटिगेशन पे, जहां पे रिड्यूसिंग फ्यूचर एमिशंस पे वो फोकस कर रहे थे. एडेप्टेशन वाज नॉट द सेंट्रल फोकस, जो आज की क्लाइमेट कंडीशन को देखकर एक पॉलिसी गैप बन गया है. तो हमारा क्या है, फोकस ऑन मिटिगेशन जो था, इट इज अ स्क्यूड बैलेंस. इंडियाज अर्ली क्लाइमेट एफर्ट्स जहां पे थे वो बहुत मिटिगेशन हैवी थे, जहां पे सब्सिडाइजिंग हो गया सोलर पावर को, या एलईडी लाइटिंग को बूस्ट करने का बात हुआ, या प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सेट्रा. बट एट द सेम टाइम अर्बन फ्लड प्लानिंग, हीट वेव रेजिस्टेंस या कोस्टल जोन मैनेजमेंट, हम लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए, इसीलिए वो सारे इवेंट्स अकर हुए थे. अब इसको पॉलिसी इम्बैलेंस के चलते भी अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं ये सब के बारे में. Coming to the next fourth one, modeling challenges. Why
ग्लोबल मॉडल्स फेल इंडिया, हमारे यहाँ पे वो क्यों वर्क नहीं करता? इंटरनेशनल क्लाइमेट रिस्क मॉडल जो है रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज हो गया, या नहीं तो शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज, दे ऑफन वर्क ऑन ग्लोबल और कॉन्टिनेंटल एवरेजेस। तो ये मॉडल फेल हो जाते हैं कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इंडिया हाइपर लोकल वल्नरेबिलिटी को ध्यान नहीं रख, हम उसमें सेट नहीं होता ये। So this is why India needs its own climate physical risk tools, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हीट इंडेक्सेस हो गए, माइक्रो लेवल फॉर फ्लड मॉडल्स हो गए। तो इससे क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट जो है इट स्ट्रेंथेंस इंडियाज केस फॉर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट गवर्नेंस। हमने देखा कि हाउ वी आर मेकिंग आवर शिफ्ट इन द पॉलिसी मेकिंग टुवर्ड्स एडेप्टेशन, और इसका रेलेवेंट तभी बहुत इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और गवर्नेंस के एंगल से भी सामने आएगा। अभी हम देखेंगे कि व्हाई क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अर्जेंट बट इट इज इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली स्मार्ट एज वेल। आप देखोगे इकोनॉमिक लॉजिक जो है, adaptation pays off, right? According to the UN, every $1 spent on adaptation saves $4 in post-disaster recovery cost. This means कि investing in flood resilient roads would definitely is cheaper than repairing the washed out highways, right? So prevention is always better than cure is what I can say. अगर आप हीट रेजिस्टेंट अर्बन डिजाइन बनाएंगे बिल्डिंग को, तो वो क्या होगा, पब्लिक हेल्थ कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी अपने आप। We can definitely use this beautifully in economy या environment के इसमें we can write this point. तो एडेप्टेशन जो है वो एक बहुत ही क्लाइमेट स्मार्ट और फाइनेंशियली वाइज टूल रहेगा इन फ्रेमिंग द पॉलिसी। अब देखोगे एडेप्टेशन कम्युनिकेशन जो है वो एक इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट है। नीति आयोग ने रिसेंटली जो रिपोर्ट में लिया था वो फर्स्ट ऑफिशियल एडेप्टेशन कम्युनिकेशन है पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 7 के चलते। ये सिग्नल करता है इंडिया लीडरशिप अमॉन्ग डेवलपिंग नेशंस। इट पुशेस फॉर क्लाइमेट जस्टिस, डिमांडिंग दैट global finance also support adaptation. It established data-backed reporting standards across the states. इंटरनेशनल रिलेशन या गवर्नेंस फ्रेमवर्क में है, ये आप इसको लिख सकते हैं। पॉपुलेशन एट रिस्क के बारे में बात करेंगे तो ये जो सोशल जस्टिस कंसर्न भी हो जाता है ना, कि 80% लोग जो है क्लाइमेट एक्सपोज्ड डिस्ट्रिक्ट एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा जो हमने रिसेंटली देखा, रूरल फार्मर्स जो है बहुत ही इराटिक मॉनसून्स की वजह से सफर होते हैं। अर्बन पुअर सफरिंग ड्यू टू हीट वेव, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलेशन एक्सेट्रा। अगर आप देखोगे कोस्टल कम्युनिटीज हैं फेसेस साइक्लोन्स एंड सी लेवल राइज, उसके चलते उनका इनकम इफेक्ट कर जाता है। आप देखोगे क्लाइमेट एडेप्टेशन इज प्रोटेक्टिंग द मोस्ट वल्नरेबल, which is equal to a constitutional and ethical mandate. How beautifully we can interlink both all this important points. If you have to understand the regulatory shift here, India is now moving towards mandatory climate risk disclosures like IFRS या ISSB जे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो गए उनको मेंटेन रखते हुए, इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट रिस्क इन पब्लिक फाइनेंसेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जो CSR नॉर्म्स हो गए उसमें भी इंक्लूड करना। These are all the steps that shows our participation. This shows कि climate resilience is no longer optional, it is becoming a compliance norm now. अभी बात करते हैं कि जो इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आने वाले कल के लिए क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट का एक बज़वर्ड रहेगा या एक फाउंडेशन प्रूव होगा ऑफ सस्टेनेबल गवर्नेंस इन 21st सेंचुरी। सो इसका देखोगे डेवलपमेंट मस्ट बी क्लाइमेट प्रूफ्ड। एवरी पॉलिसी जो है ना, फ्रॉम हाउसिंग टू हाईवेज मस्ट बी रीइवैल्यूएटेड थ्रू अ climate risk lens. Coastal roads must handle storm surges, जैसे rural housing must endure heat waves, crop insurance must account for extreme rainfall. इसको बहुत अच्छी तरीके से ना ऐसे में भी मेंशन कर सकते हो, प्रोग्रेस दैट कैन एंड्योर क्लाइमेट इज मियरली पोस्टपोनिंग द फेलियर।
ये तो बहुत ब्यूटीफुल लाइन हो गई। एनीवेज, नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक सीपीआर या क्लाइमेट डेटा हब्स हो गए। अगर आप वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी यहाँ पे काम नहीं करेगी। इंडिया को ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट का अलग फिजिकल क्लाइमेट फिजिकल रिस्क क्लासेस होने चाहिए। रियल टाइम क्लाइमेट डेटा हब्स होने चाहिए जहाँ पे अच्छे से उन इम्पैक्टफुल डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। क्राउड सोर्स रेजिलियंस मैपिंग हो गया, जैसे कोई ऐप हो गई या सिटीजन साइंस की चलती दैट काइंड ऑफ एफर्ट्स। अगर हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, गवर्नेंस सेक्शन में भी वी कैन यूज दिस। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन इनटू अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें तो सीपीआर मस्ट अर्बन प्लानिंग में भी मेन स्ट्रीम किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन हो या जल जीवन मिशन हो या पीएम गति शक्ति, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है उन सब में मेन स्ट्रीम करना चाहिए। दिस वुड क्रिएट डेफिनेटली resilient infrastructure and it would definitely reduces post disaster costs। मीन्स में आप इसको यूज कर लेना कि resilience by design not as a afterthought। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें बात करेंगे तो ये एक बहुत ही मिसिंग पजल है हमारे लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है ना, उनको एक क्लाइमेट रेजिलियंट सप्लाई चेन बिल्ड करना पड़ेगा, या इट शुड इंक्लूड सीपीआर इन इंश्योरेंस प्राइसिंग मॉडल्स या अडॉप्ट ग्रीन फाइनेंस नॉर्म्स एक्सेट्रा। बैंक्स, इंश्योरर्स और इंफ्रा फर्म्स जो है वो इंटीग्रेट करें क्लाइमेट रिस्क इनटू लेंडिंग एंड एसेट प्लानिंग के चलते। मूविंग टुवर्ड्स टू आवर लास्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर जो है यूपीएससी का एवरग्रीन थीम है, लेकिन आज हम देखेंगे इससे एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे थ्रू अ नीति आयोग बैक्ड डेवलपमेंट इनसाइट। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट फूड प्रोडक्शन, इट इज अ टूल फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस जो हमने अभी देखा, एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। So let's understand the 4 key insights from this topic. Agriculture growth. It is a powerful poverty reducer. नीति आयोग डेटा जो है शो करता है कि 1% growth reduces poverty 4 times more than the same growth in manufacturing. How strong is it? Why? Because agriculture is the primary source of a livelihood for 50% of the population, 50% plus population. So growth here has direct income impact on the rural poor. Unlike manufacturing, उसमें क्या होता है, it benefits more to the it is not directly related, यहाँ पे equitably distributed होता है। This is a brilliant data, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो रूरल इकोनॉमी में। इफ यू टॉक अबाउट रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, नीति आयोग ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट करता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, टारो हो गया। सो दीज आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, इट नीड्स लेस वाटर। तो ऐसे क्रॉप्स यूज करने पर फर्टिलाइजर्स भी लेस यूज होते हैं, तो हमें एक न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी भी मिल जाती है। दिस वुड डेफिनेटली अलाइन विद फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एडेप्टेशन, और कोई थीम आपको अगर इफ यू कैन रिलेट टू, प्लीज ट्राई टू रिलेट इट व्हेन यू आर रीडिंग सच आर्टिकल्स। हम लोग इसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। इफ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसमें ना एक बोलते हैं पोटैटो डिप्लोमेसी। India recently marked 50 years of collaboration with International Potato Center, CIP, Peru. So this includes R&D on pest-resistant potato varieties and improving yield through biotechnology, and यहाँ पे फार्मर्स प्रोग्राम्स को एक्सचेंज करेंगे एक्सेट्रा। तो ये क्या दिखाता है कि इंडिया का जो बायलैटरल पार्टनरशिप है ग्रास रूट सोल्यूशन में ट्रांसलेट कर रहा है अपने आप को। अगर आप बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड्स की, द रियल गोल अल्टीमेटली इज एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो एक जीडीपी के लिए ही ध्यान नहीं रख सकते हम। इट इज अबाउट इनकम स्टेबिलिटी फॉर स्मॉल फार्मर्स, जॉब्स है इन अलाइड सेक्टर्स लाइक फ्रूट प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। इट enables a dignified rural livelihood
So this hits the heart of GS3 inclusion growth या poverty elevation section में आप इसको definitely mention कर सकते हैं। अभी जब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग है वो एक नेशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जो पॉलिसी डायरेक्शन पे स्पॉटलाइट डालेंगे तो वो यूपीएससी के लिए डायरेक्ट गोल्ड माइन बन जाता है। तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ या रूट क्रॉप्स क्यों, मतलब जो हेडलाइंस बनाए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नीति आयोग का स्टेटमेंट था कि 4 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट दे रहा है। इट एट अ सिंपोजियम एक हुआ था जहां पे इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, नीति आयोग के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर रिड्यूसेस पॉवर्टी 4 टाइम्स मोर इफेक्टिवली देन ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग करके। तो इसीलिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखते हैं कि ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एग्जाम में भी आपको लिखने के लिए या रिकॉल करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो आपको आपके लिए ये ट्रिपल बूस्टर बनेगा, ऐसे में भी आप लिख सकते हो। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पॉवर्टी रिडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एग्रीकल्चर जो है has the highest employment elasticity, तो it directly benefits the rural poor। तो ये जो की रीजंस है कि एग्रीकल्चर एक पॉवर्टी बस्टर है, वो इसीलिए है क्योंकि it provides wage employment plus self-employment. It promotes inclusive growth by boosting rural demands. It improves food and nutrition security. जैसे कि जो रिसेंटली रमेश चंद जी ने कोट किया था कि 1% ग्रोथ जो है वो कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करता है 4 टाइम्स बेटर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके चलते आप देखोगे हाउ इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग टूल इट इज। अगर आप रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स के बारे में, वो एक बहुत ही क्लाइमेट स्मार्ट है और न्यूट्रिएंट रिच है। पोटैटो, स्वीट पोटैटोज हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि वो लेस वाटर का नीड होता है उनका, बहुत ही फ्यूअर इनपुट्स के साथ दे सर्वाइव एंड दे कैन इवन सर्वाइव क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एज वेल, ड्रॉट्स हो गए ऐसे कुछ। और अगर कोई मार्जिनल कम्युनिटी है उनको एक थोड़ा एक न्यूट्रिशनल फैक्टर भी ऐड हो जाएगा, है ना, इफ वी कल्टिवेट दिस। So this would definitely give income support to small and marginal farmers. This is one of the advantage of this. They perfectly fit into answers. अगर crop diversification की बात करेंगे, definitely cite this example, root and tuber crops. It becomes important क्योंकि नीति आयोग ने कुछ बोला है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर अगर वो एक है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप मॉडल है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरू। इट इज अ ग्लोबल रिसर्च सेंटर फॉर ट्यूबर क्रॉप्स। ये जो इंडिया का है, इट इज एसोसिएटेड सिंस 1975 वाया ICAR, कोलैबोरेटेड ऑन पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, उनके यील्ड की इंप्रूवमेंट के बारे में ऐसे सारा कुछ रिसर्च किए थे। नाउ एक्सपांडिंग इनटू इंडिया वाया साउथ एशिया रीजनल सेंटर इन आगरा। हमारे जो ये CIP के बारे में बात हो रही है ना, उसको हम बायलैटरल या मल्टीलैटरल बॉडीज में, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आ सकता है। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। CIP प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। तो आप उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए प्रिपरेशन का। जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो दो शब्द हमें हमेशा उसके साथ आते हैं, एक तो है एग्रीकल्चर और दूसरा है पॉवर्टी। तो लेकिन हम जान सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट फूड प्रोडक्शन, राइट। हमने अभी देखा कि इट्स अबाउट एक ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द करंट रेलेवेंस। आप देखोगे अग्री लेड ग्रोथ एक इंक्लूसिव ग्रोथ माना जाता है। जब एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो सबसे पहले मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हो गए, रूरल वुमेन हो गए, यूथ हो गया, उनकी लाइफ को सुधारता है। माल नरिश्ड हाउसहोल्ड्स हो गए, उनको हेल्प करेगा। एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज डायरेक्टली एड्रेस टू हिडन हंगर या कोई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो गया, उसको डायरेक्टली टैकल करता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उसको हैंडल करेगा।
तो if you see how agri-led growth is multidimensionally important for us, it is more, agriculture is the most employment elastic sector in India's economy. Keep this in mind. CIP एक्सपेंशन इंडिया की अगर बात करेंगे या साउथ एशिया में जो आगरा में हो रहा है, वो CIP जो है अभी नया सेंटर खुलेगा आगरा में. इट इज टारगेटेड टॉप 20 पोटैटो ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स. इट इज बैक्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. दिस शोज कि सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन रिसर्च डेवलपमेंट में भी कैसे काम करता है. ये जो इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर R&D को ग्राउंड लेवल फार्मर्स तक ले जाने की बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है. अब बात करेंगे इंडिया एज अ ग्लोबल पोटैटो लीडर. इंडिया इज नाउ सेकेंड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर China, poised to become an agri-export powerhouse via value-added products, chips, starch, frozen products, etc. So this indirectly would support doubling farmer income goals, क्योंकि ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स, इट वुड हेल्प देम ग्रो. WTO कंप्लायंट एग्री एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात होगी यहाँ पे. तो हमें डाइवर्सिफाई करना बेनिफिट भी मिलेगा, उससे ग्रोथ भी होगी और ग्रास रूट लेवल पे होगी. दिस शोज कि इंडिया के जो नॉन सीरियल एक्सपोर्ट्स है वो कैसे हम लोग उनको स्ट्रेंथन कर सकेंगे. इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक सिनर्जी, इनोवेशन ड्राइव्स इम्पैक्ट. दिस सिंपोजियम स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड कि linking institutions like ICAR या CPRI with local farmers, it would definitely encourage agri-tech startups promoting climate resilient innovations. So this is the essence of PPP in agriculture, जहाँ पे प्राइवेट इनोवेशन जो है पब्लिक डिलीवरी चैनल्स को मीट करेगा. अगर हम बात करेंगे कि हमारे जो सॉइल में भारत की जो मिट्टी है उसमें इतनी ताकत है कि ये सिर्फ किसानों की रोजी रोटी नहीं देती बल्कि पूरे वर्ल्ड को न्यूट्रिशन का एक रोड मैप भी दे सकती है. टुडे वी लुक इनटू इंडियाज ट्यूबर रिवोल्यूशन, स्पेशली जो स्वीट पोटैटोज हैं या पोटैटोज है, हाउ इट कुड शेप नॉट जस्ट इंडियाज फूड सिक्योरिटी बट इवन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस. अब देखोगे, अगर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस के बारे में जानेंगे हम, इन्वेस्टमेंट इन अग्री R&D एंड डाइवर्सिफिकेशन, इससे क्या होगा, अगर हमें पॉवर्टी, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रिस्क तीनों से लड़ना है तो सोल्यूशन एक ही रहेगा, साइंटिफिक एग्रीकल्चर विद डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स. तो फोकस हमारा ये रहेगा ऑन रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स. उससे क्या होता है, ये एक बहुत ही क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग माना जाएगा. it would reduce reliance on water intensive cereal crops. वो क्या होगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, इट वुड गेट देम इनटू सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स. तो अगर आप देखोगे ट्यूबर्स इन इंडियाज फूड पॉलिसी, इफ आई हैव टू लर्न अबाउट देम, न्यूट्रिशन डेंस होता है, रिच इन कार्ब्स एंड मिनरल्स. तो ट्यूबर्स कैसे, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी होते हैं, लो वाटर, वो सब. इट इज सूटेड फॉर ट्राइबल एंड एरिड रीजन्स आल्सो. सो इंडिया का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी जो है, इनको ना, इसको प्रायोरिटी में देना चाहिए टू ऐसे क्रॉप्स को जो अलाइन करेगा अभी जैसे जो हमारे SDG कमिटमेंट है इंडिया की या नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी है, उसमें अगर हम उसको प्रायोरिटी में रखेंगे, और या फिर FAO का जो जीरो हंगर टारगेट है, we can if we use this kind of crops like tuber, तो हमें इतने सारे एडवांटेजेस उस पे है. तो ये जो है, जो इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है इन ट्यूबर रिसर्च को एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद ग्लोबल साउथ के लिए एक वे है, एक वे बनाएगा दैट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो व्हाट एडवांटेज वी विल हैव एंड what we have to offer the world. So with that, we conclude today's session on agriculture and climate adaptive nutrition strategies. मैंने वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से आप ना डिटेल्ड नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उनको. एंड प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज कीप रिवाइजिंग. We shall meet tomorrow. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.